میرے آقا نے سچ فرمایا، ارشاد فرمایا سمو بھی اسمی محمد و احمد، او لوگوں میرے نام پہ نام رکھا کرو، یا تو محمد رکھو یا احمد رکھو، کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا کل میدان محشر میں جب پکارا جائے گا، جب جنتیوں کو آواز لگائی جائے گی اور جب آواز یوں دی جائے گی محمد او احمد ادخلوا الجنہ، اے محمد یا احمد جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، ایمان سلامت ہوگا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں انٹری کر جائے گا۔ اس لیے بچوں کے نام ہمیشہ اچھے رکھو تاکہ ان کے سپنے اچھے ہوں، تاکہ ان کی فکریں اچھی ہوں، تاکہ ان کے دل اچھے ہوں، تاکہ ان کی باڈیاں اچھی ہوں، نام اچھے ہوں گے، کام بھی اچھے ہوں گے۔ جناب والا ہاں ناموں کا اثر ذاتوں پہ بہت پڑتا ہے، لمبی ہو جائے گی گفتگو، میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ میرے نبی کے دو نام، واہ، ایک نام احمد ہے، ایک محمد ہے۔ بے شک۔ اب یہ بتاؤ احمد کسے کہتے ہیں اور محمد کسے کہتے ہیں؟ اب جناب آسمانی نام احمد، زمینی نام محمد، تو دونوں ناموں میں فرق کیا؟ تو احمد کہتے ہیں اس شخصیت کو جس نے سب سے زیادہ تعریف کی، واہ، سب سے زیادہ تعریف کی، کروڑوں سال لاکھوں سال ملینوں سال بلینوں سال جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی وہ احمد ہے۔ واہ، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا احمد، بے شک۔ اور زمین پہ آتے ہی محمد۔ اب محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد وہ ہستی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، بے شک، حق، زور سے زور سے زور سے، سبحان اللہ۔ آسمانوں میں احمد سب سے زیادہ تعریف ان کی گئی، اور جب زمینوں میں آئے تو سب سے زیادہ تعریف ان کی ہوئی، واہ، وہاں انہوں نے کی، یہاں ان کی ہوئی۔ ایسی تعریف ہوئی، ایسی تعریف ہوئی، اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، پوری دنیا میں شہرا ہے، نہیں آئے تھے تو تعریف ہو رہی تھی، آئے تو چھا گئے، آ گئے تو چھا گئے۔ اور جناب والا ہماری نظروں سے جناب والا بظاہر مصطفیٰ جان رحمت پردے میں ہیں، مگر ایسا چرچا ہے، ایسا چرچا ہے، ایسا چرچا ہے، زمینوں میں دیکھو تو ان کا نام، آسمانوں میں دیکھو تو ان کا نام، فضاؤں میں دیکھو تو ان کا نام، خلاؤں میں دیکھو تو ان کا نام، جواؤں میں دیکھو ان کا نام، ہواؤں میں دیکھو تو ان کا نام، منگلوں میں دیکھو تو ان کا نام، جنگلوں میں دیکھو تو ان کا نام، جدھر دیکھو ان کا نام۔ 12 ربیع الاول کو تو حد ہو جاتی ہے، امریکہ میں جلوس محمدی، یورپ میں جلوس محمدی، ایشیا میں جلوس محمدی، آسٹریلیا میں جلوس محمدی، یہاں سمندر میں اسٹیمروں میں جلوس محمدی، فضاؤں میں ہوائی جہازوں میں جلوس محمدی۔ یا رسول اللہ کے نعروں سے جب پوری دنیا گونج جاتی ہے تو میڈیا پرسنس کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں ہستیاں بہت آئیں، دنیا میں لوگ بہت آئے، دنیا میں شخصیتیں بہت پیدا ہوئی، مگر جتنا چرچا پوری دنیا میں آمنہ کے لال کا ہوا، اتنا چرچا زمانے میں آج تک کسی کا نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ فلسفہ آئے، سائنٹسٹ آئے، انجینئر آئے، ڈاکٹر آئے، MBBS آئے، MD آئے، بہت سارے لوگ آئے دنیا میں، مگر خدا کی قسم چرچا اگر کسی کا ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہوا ہے۔ اپنا بھی ان کا نام لیتا ہے، بیگانہ بھی ان کا نام لیتا ہے، اور جناب والا کوئی محبت میں لیتا، کوئی جل کے لیتا ہے، مگر جو جل کے لیتا ہے وہ ڈالتا ہے سیدھا گیر، وہاں بھی پڑ جاتا ہے الٹا گیر۔ بے شک۔ ڈینمارک میں کارٹون چھپے، ڈالا تھا سیدھا گیر، نبی کے کارٹون بے شرم و بے غیرتوں نے چھاپ ڈالے، ڈالا تھا سیدھا کہ نبی کی توہین کر رہے ہیں، مگر توہین کے پیچھے بھی عزت چھپی تھی، جیسے کربلا میں حسین کے ساتھ ہوا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سرے حسین کو نیزے پہ اٹھا لیا ظالم کتوں نے، یزید اور یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے ان شکاری بھیڑیوں نے، ان کتوں نے مصطفیٰ کے شہزادے کے سر کو نیزے پہ اٹھا لیا، اور نیزے پہ اٹھا کے چلنے لگے، طباخ میں نہیں رکھا، تشتری میں نہیں رکھا، پلیٹ میں نہیں رکھا، نیزے پہ اٹھا لیا۔ ان کا مقصد تھا ہم توہین کر رہے ہیں، مگر ان کتوں
कुत्तों, दरिंदों, वहशियों, जंगलियों को कौन बताए कि तुम तौहीन की आड़ में उनकी तालीम कर रहे हो। हमने कहा नेज़े पे क्यों चढ़ा लिया, तो आवाज आई ताकि जमाने को खबर हो जाए कि यही सर करबला से पहले भी ऊंचा था और करबला के बाद भी ऊंचा है। करबला से पहले भी हुसैन सर बुलंद था, करबला के बाद भी सर बुलंद है। और यही हाल उन कार्टूनों का हुआ। डेनमार्क में कार्टून छपते हैं मुस्तफा जान रहमत के, वो कुत्ते समझे हम तौहीन कर रहे हैं, मगर खुदा की इज्जत की कसम उसी तौहीन से, उसी तौहीन की कोख से डेनमार्क में मुसलमानों का वजूद हो गया। कैसे हो गया? आजकल गवर्नमेंट बहुत परेशान है वहां की। क्यों? कि पहले मुसलमान नहीं थे, मगर जब से कार्टून छापे गली गली में शोर मचा पड़ा, हु इज होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ये मोहम्मद हैं कौन, आओ पढ़ के देखे, लेटर स्टडी द लाइफ ऑफ होली प्रोफेट। और एक बार जरा मोहम्मद को पढ़ के तो देखें। जब से कार्टून छपे हैं वही लोग नबी की इधर नबी को पढ़ने लगे, नबी की सीरत पढ़ने लगे। और खुदा की कसम जो एक बार नबी की सीरत की किताब पढ़ लेता है वो किताब बाद में ख़त्म करता है, पहले पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चारों तरफ शोर मचा पड़ा है, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कल तक नहीं थे। वाह, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जिधर देखो मोहम्मद का नाम होगा। बिल्कुल हक। अरे है इजाजत और बोलूं थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल हजरत बोलो। आज की साइंस ने भी साबित कर दिया। तुम साइंस पे बहुत मरते हो ना, साइंस की बहुत बातें करते हो तुम, मगर आज की साइंस ने भी साबित कर दिया कि बस दो ही हकीकतें हैं, या तो अल्लाह है या रसूलुल्लाह है। There is no third fact। तीसरा फैक्ट है ही नहीं। बिल्कुल हक। तीसरा फैक्ट है ही नहीं, है ही नहीं। ना मैं हूं ना तुम हो, कोई वजूद नहीं है मेरा और तुम्हारा। बिल्कुल। न ये जमीन, न ये आसमान, न ये सिस्टम, न निज़ाम जनाने वाला कोई फैक्ट नहीं है। बस दो ही फैक्ट हैं, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। वो अल्लाह वो है जिसने दुनिया बना दी और रसूलुल्लाह वो है जिसके लिए दुनिया बना दी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वो है जिसने बना दी और नबी वो है जिसके लिए। मोहम्मद इमरान हनफी नबी के लिए, बिल्कुल हक। आला हजरत इमाम अहमद रजा नबी के लिए, मेरे मुफ्ती आजम नबी के लिए, अब्दुल कादिर नबी के लिए, हुसैन नबी के लिए, ये ज़मीन नबी के लिए, ये आसमान नबी के लिए, गुल गुलजार नबी के लिए, हवाएं नबी के लिए, खलाएं नबी के लिए, फिदाएं नबी के लिए, सारा ज़माना नबी के लिए। बरेली वाले ने सच कह दिया, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, दैन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। सच्चाई ये है कि बने दो जहां तुम्हारे लिए। क्या वजूद है? वजूद तो एक नबी का है, वजूद तो एक अल्लाह का है, बस। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा है ही नहीं। ये साइंस ने भी साबित कर दिया आज। बिल्कुल। परेशान तो नहीं हो? जी नहीं। अच्छा वजूद क्यों ना हो, बस वही दो वजूद हैं और उसकी वजह ये है। ए बैठ जा, वहीं बैठ जा और बैठा रहे। सुबह तक मैं बोलता रहूं तो बैठे रहोगे इंशाअल्लाह। कितने हाथ हैं उठा के बताओ? सुबह तक ना मैं बोलूं ना तुम सुनो, मगर तुमने नियत करके मीटर तो सवाब का चालू करवा लिया। मेरे बाद हारूनी साहब पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। अरे कैसे ऐसे कैसे जा सकते हैं? जलसे वाले छोड़ेंगे नहीं, अभी तो कई पर्चियां हैं, कई तावीज हैं, अभी तो कई तावीज हैं, अभी तो एक दो तावीज ही तो आए हैं सामने। बिल्कुल। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है इंशाअल्लाह। ए लोगों, बहुत गौर से सुन लो। मुझे क्या हो गया, रात के 12 बजे मुझे कोई वाकया बताना चाहिए था, मगर मुझे ये क्या हो गया कि मैं
पॉइंटों की तरफ चला गया। अल्लाह आबाद रखे, सब रखे। मैंने दावा किया कोई वजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे एक अकेली हस्ती है मेरे और तुम्हारे नबी की, जिस नबी को अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बनाया। बेशक आदम मजहर नहीं है, नूह मजहर नहीं है, इब्राहिम खलीलुल्लाह उलुल अज़म पैगंबर है मगर अल्लाह की ज़ात का मजहर नहीं है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह उलुल अज़म पैगंबर है, अल्लाह की ज़ात का मजहर नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह उलुल अज़म पैगंबर है मगर अल्लाह की ज़ात का मजहर नहीं है, ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह अल्लाह की ज़ात का मजहर नहीं है, एक अकेला मोहम्मद अल्लाह की ज़ात का मजहर। वाह क्या बात है। बेशक अरे तुम मजहर नहीं समझे होगे, मजहर को यूं समझ लो, मैं मिसाल दे दूं। पूरे महतोश में शोर मचा है, फलां की बेटी है, नूर फातिमा नाम है, जिया फातिमा नाम है, और कितनी भोली भाली सीधी सादी है, इतनी भोली भाली सीधी सादी है कि वो कुरान पढ़ती है, तिलावत करती है, सुबह को फजर की नमाज पढ़ती है, फजर की नमाज के बाद तिलावत करती है, आज तक उसका किसी ने नाखून नहीं देखा, पर्दे की हिफाजत करती है, सैयदा तैयबा ताहिरा की आंखों को ठंडक पहुंचाती है। तो जनाबे वाला वो पर्दे का इल्तिजाम करती है, वो जनाब वो उसका नाखून नहीं देखा, वो कभी बाजार नहीं जाती है, वो घर में ही रहती है, और जब बोलती है तो इतनी स्लो आवाज में बोलती है कि कोई अजनबी उसकी आवाज नहीं सुन सकता। पूरे महतोश में शोर मचा। तो जनाब वाला एक बुजुर्ग ने भी सुना, तो बुजुर्ग बोले वो अपनी माँ को गई है, अपनी माँ का मजहर है, जैसे माँ थी वैसे ही बेटी है। आप समझ गए होंगे, जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। माँ परहेजगार थी, तकिया थी, नकिया थी, तो आज उसकी बेटी भी वैसी है, ये अपनी माँ का मजहर है। बेशक सुभान अल्लाह। अपनी माँ का अक्स है, अपनी माँ की परछाई है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये बेटा है, सूद नहीं खाता, जुआ नहीं खेलता, हर वक्त नमाज पढ़ता, रोजा रखता, नूर की शुआएं बिखरती रहती हैं इसके चेहरे पर, और जब भी बोलता मीठी बोली बोलता, अखलाक का बुलंदो बाला है, किरदार का अज़ीमुश्शान पैकर है, बहुत ही अच्छा बच्चा। महतोश में इस बच्चे का जवाब नहीं। तो कोई कहता है अपने बाप को गया, इसका बाप भी बड़ा सच्चा नमाजी पक्का परहेजगार था। तो जनाबे वाला वो बच्चा अपने बाप का मजहर हो गया। मजहर का मतलब समझ में आ गया तुम्हें? पूरी दुनिया में वाह एक अकेला वजूद है, बेशक सिर्फ ओनली वन पावर, सिर्फ एक अकेली ताकत, वाह एक अकेली हैसियत, एक अकेली शख्सियत, जिसे अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बना के भेजा, इसीलिए उसका साया नहीं हुआ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे साए का साया ना होता है, ना साया नूर का, वो तो खुद साया है। वाह अरे बोलते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। आदम का साया है, मूसा का साया है, ईसा का साया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का साया है, मगर नबी का साया नहीं है। बेशक नबी का साया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद साया है, साए का साया नहीं होता। वाह बेशक वो तो खुद पर्दा है, वो खुद मजहर है। साए का साया ना होता है, ना साया नूर का। मेरे आला हजरत ने कितना अच्छा इशारा कर दिया उधर। वाह बेशक। आज तुम समझते हो साया क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि वो खुद साया है। हमने नहीं देखा कि साये का कहीं साया होता हो। वाह तुमने देखा साये की कोई परछाई होती है? नहीं नहीं, परछाई की परछाई होती है नहीं, जब वो खुद परछाई है। वाह तवज्जो है? बिल्कुल। जब वो अक्स है तो अल्लाह की ज़ात का मजहर है। इसीलिए मूसा कलीमुल्लाह जैसा उलुल अज़म पैगंबर जनाबे वाला एक दिन अल्लाह से यूं अर्ज़ करता, अल्लाह आज तू मुझे दिखा दे, तेरा जलवा दिखा दे, आज तू मुझे अपना जलवा दिखा दे। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मूसा तू मेरा जलवा देख नहीं पाएगा, लंतरानी देख नहीं पाएगा। तो मूसा ने कहा दिखा तो दे। तो अल्लाह ने फरमाया लंतरानी देख नहीं सकता। कहा दिखा तो दे, कहा नहीं दिखा। इसरा
इसरार है, इनकार है, इसरार है, इनकार है। इसी इसरार और इनकार की बाहम कशमकश में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मूसा अगर तू मेरा जलवा देखना ही चाहता है तो सुन, इस पहाड़ की तरफ देख। फंजुर इलल जबल, अगर ये पहाड़ इन इस्तक़र्र मकानहु, अगर ये पहाड़ अपनी जगह रह गया तो तू मुझे फसौफ तरानी, तो तू मुझे देख लेगा। और अगर पहाड़ अपनी जगह नहीं रहा तो देख नहीं पाएगा। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सैक़ा, जब रब की तजल्लियां पहाड़ पर आई तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, बाद में होश आया। जब होश आया तो मेरे अल्लाह से पूछा, ए मेरे मौला, मैं बड़ा जलील कद्र पैगंबर हूँ, उलुल अज़म पैगंबर हूँ तेरा, मुझे नाज है कि मैं तेरा उलुल अज़म पैगंबर हूँ, मगर मुझ जैसी हस्ती भी, मुझ जैसी शख्सियत भी जब तुझे देख ना सकी तो ए मौला तुझे देखेगा कौन? निदाई हातिफ गैबी से मूसा, तू मेरी सिफत का मजहर है। बेशक, क्या बात है, वाह। 1 घंटा हो रहा है, खत्म कर लूं? अभी बोलो। कोई जाएगा तो नहीं अभी? नहीं। अभी तो बहुत बातें रह गई, 10 मिनट रह गए घंटे में को, बातें बहुत हैं, कोई जाएगा तो नहीं? मगर मैं देख रहा हूँ एक लड़का अभी अभी गया है और मैं उस लड़के को कह नहीं पाया क्योंकि थोड़ा बड़ा था। अगर वो मुझे पलट कर कह देता मैं तो जा रहा हूँ तो मैं क्या कर लेता उसका, इसलिए मैं कह नहीं पाया। मगर अगर तुम गए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उफान नहीं है। तवज्जो है? मोहब्बत से सुनोगे, मोहब्बत से सुनाऊंगा। लंदन की बात करूं उठ के चले जाना, यूरोप की बात करूं उठ के चले जाना, अगर मदीने वाले की बात करूं तो तुम्हारा कौन सा दिल है जिस दिल से तुम नबी का जिक्र छोड़ के चले जाओगे? नहीं जाएंगे। कौन सा दिल है? कैसी गुलामी है? क्या यही इश्क है? तवज्जो है? अरे ओ लोगो, अल्लाह की जात का मजहर बन के आए तो अल्लाह ने फरमाया कोई नहीं देख पाएगा मुझे वो देखेगा जो मेरी जात का मजहर होगा। आदम मेरी सिफत का मजहर है, मूसा तेरी मेरी सिफत का मजहर है, इब्राहिम मेरी सिफत का मजहर है। ये सिफत देख सकते हैं, जात नहीं देख सकते। बरेली वाले आला हजरत बोले किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अपनी जात का मजहर बना लिया, मजहर बना के अपने कुर्बे खास में रख लिया, करोड़ों साल कुर्बे खास में रख लिया, यानी गोया तो मैं समझाने के लिए कहूँ अपने पास में रख लिया। अब जनाबे वाला वही दो हकीकत हैं, एक वो है एक वो है। इसे साइंस ने भी साबित कर दिया है आज की दुनिया में, हमारा तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। अभी साइंस की बात करूं तो जनाबे वाला तुम आज साइंस साइंस चिल्लाते हो, तुम मरते हो साइंस पे, साइंस मरती है मेरे मुस्तफ़ा पे। कहाँ नहीं है उनका जलवा, कहाँ नहीं है उनका जलवा। अभी तुमने नाम सुना होगा, अभी जब अब देख सकते हो तुम, अभी सलामत है वो जनाबे वो बयान सलामत है, तुम देख लो। वो साइंस की बहुत बड़ी अधिकारी है, नासा कंपनी है, खलाई एजेंसी है, दुनिया की मशहूर एजेंसी है, उसकी बहुत बड़ी अधिकारी हैं। सुनीता नाम है उनका, सुनीता विलियम के नाम से जानी जाती हैं। 6 महीने सैटेलाइट में रही हैं, ऊपर रही हैं 6 महीने सैटेलाइट में, बहुत दूर है सैटेलाइट, अंतरिक्ष जिसे तुम कहते हो, अंतरिक्ष में 6 महीने वहाँ रह के आई। जब वो 6 महीने रह के आई अमेरिका वापस आई तो अमेरिका में साइंटिस्टों ने, फलासफरों ने, डॉक्टरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनसे बोले व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आ रही हो? तो कहने लगी इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद इसलिए करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन बताए कि खुशबू तो खुशबू है, लाख दरवाजे बंद कर लो, खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। बेशक साबित करना चाहता हूं कि साइंस भी साबित कर रही है कि या तो नाम अल्लाह है या नाम मोहम्मद है। वाह, क्या बात है। दरवाजे बंद हो गए और दरवाजे बंद करके कहती हैं, जुमला सुनो, कहती हैं we saw from satellite all the earth was black and darkness over darkness but except Makkah and Medina।
वाह समझ गए? We saw from satellite all the earth. Whole earth was black and dark. Darkness above darkness. But except Makkah and Medina. हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, जब हमने ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे तो ज़माने के पर्दे पे उजाले का नाम और निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से विद माई आईज, हमने अपनी आंखों से वहां से इस काली दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे, दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा, अजी कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब ये लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। ए लोगों, या तो मक्का में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। या इमरान हनफी के अल्फाज में ये कह लो लोगों, उजालों का मरकज तो ही है, या तो काबा है या फिर काबे का काबा है। मक्के में लोगों अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। बरेली वाले कह गए, हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।